But illustration 6 we are supposed to start today. Okay. Now in this sum, we'll not able to do any bifurcation. The reason in illustration 6 what they have done is they have already made a trading and a profit and loss account which is absolutely incorrect. And then now we need to make it a revised trading account, a revised profit and loss account. So we'll not able to do the bifurcation. लेकिन सम पढ़ना शुरू करते हैं. Govind and Gopal had started a partnership firm on 1/4/2016. Partners are entitled for 5% interest on capital. 10% commission is payable to Gopal on profit. Underline करो, it's on profit. After deducting of commission from the profit. Now ये after वाला शब्द अगर होता था तो याद करो what formula for commission we used to apply? Profit into rate of commission upon 100 plus. Yeah. Now partners are sharing profit and loss in the proportion of 3:2. वो तो हम ढूंढ लेंगे. Then there are several mistakes in the trading and profit and loss account because it is prepared by Kamal sir. You are asked to prepare the revised annual accounts. तुम अभी देखो स्मार्ट बच्चे सब रिवाइज करके बना दोगे जिसमें क्या क्या चीजें बनानी है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, we'll also make profit and loss, appropriation account, then we need to make. So मेरे को 2 मिनट दे दो, मैं फॉर्मेट बना लूं और जिन्होंने नहीं बनाया स्टार्ट कर दे. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ गोविंद एंड गोपाल for the year ending on 31/3/17. Debit particulars amount, particulars amount credit. Then यहीं पर मैं partners capital account I'll draw it up. Partners capital account, date, Govind, Gopal, Govind, Gopal. This is credit. Okay. Then we make profit and loss account. This is debit, particulars, amount, then we are also supposed to make what? P&L appropriation account. तो वो तो मैं वहां बना दूंगा या तो यहाँ बना देता हूँ. चलो P&L appropriation account, particulars, amount. This is debit, particulars, amount, credit. And the last what we need to draw is the balance sheet, that is liabilities, amount, asset, amount. Liabilities beta it's credit and asset it is debit. Okay, beta you people have done the format right? Let's begin. पहला beta purchase कहाँ दिखाते हैं हम? Purchase trading account. Write it in the inner column. Come on. Purchase, we will write that in the inner column. Purchase, the amount is 248,600. It's 248,600. Then उसमें देखो प्लस करा है goods returned credit. But what is this goods returned credit is? लिखो ब्रैकेट में it says return. Goods return credit નો मतलब મારે એને ડેબિટ કરવાનું હોય એટલે લખો બ્રેકેટ में सेल्स रिटर्न છે. અને सेल्स रिटर्न हम कैसे दिखाएंगे? सेल्स रिटर्न सेल्स में से
सो पहले जरा हम सेल्स लिख लेते हैं। देखो बाजू में से सेल्स की अमाउंट कितनी है 332,400 અને એની નીચે જે લખ્યું છે ગુડ્સ રિટર્न डेबिट मतलब मुझे उसे करने का क्रेडिट एंड इट इज परचेज रिटर्न। बेटा गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मतलब हम उसे क्रेडिट नोट देंगे अपने कस्टमर को जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे। गुड्स रिटर्न डेबिट का मतलब हम उसे डेबिट नोट देंगे एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। इसलिए ऐसा क्रेडिट डेबिट वो लोग लिखते हैं उसके साथ साथ। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर परचेज रिटर्न कितना बेटा 600। So 248,000 going in the outer column અને સેલ્સ માંથી સેલ્સ રિટર્ન માઈનસ કર દઈએ। કેટલું છે બેટા સેલ્સ રિટર્ન? તો it is 3,30,000। It's 3,30,000। बेटा नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक where do we show it? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में या ऐसा प्लस करके साला कौन लिखता है सर? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट ना क्रेडिट साइड। बेटा देन where do we show wages? Wages trading ma debit side we will show wages 11,200 wages 11,200। देन कैरेज इनवर्ड में से कैरेज आउटवर्ड माइनस किया, ऐसा चले? तो कैरेज इनवर्ड अलग से बताओ, कैरेज आउटवर्ड अलग से। कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड कितनी अमाउंट है? कैरेज इनवर्ड 8,000। And how much is my carriage outward? 4,000। So यहाँ पर मैं P&L में लिख दूंगा carriage outward that's 4,000। Then बेटा सैलरी कहाँ लिखूं मैं? सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। But how much is my amount of salary? 18,000। Then rent kute rent P&L again 12,000। Then postage expense। बेटा postage expense कहाँ जाएगा? P&L। How much is the amount? 600। Then sundry expense will also go to P&L. It's 1,200। Then we have telephone expense, that is 1,600। Then Govind and Gopal ka drawings, where it will go? Drawings। फाइनेंस कैपिटल में कहा 31,317 2 drawings 31,317 2 drawings। बेटा कितनी अमाउंट है? 6,048,00। देन क्रेडिट साइड मैंने देखो सेल्स ऑलरेडी लिख दिया। क्रेडिट साइड हमने सेल्स ऑलरेडी लिख दिया। क्या उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया है? बहुत बढ़िया काम करा है। इंटरेस्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट हाँ बेटा पढ़ाई में जो तुम्हें नहीं आता है इंटरेस्ट। सर इसीलिए तो पता नहीं इंटरेस्ट जा कहां रहा है। 600 is the interest P&L account will do that।
देन डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड P&L again. So discount received will also go to P&L and the amount is again 800. Very good. नेट लॉस कहाँ जाएगा? नेट लॉस वाई कहीं नहीं। कहना से नेट लॉस इन्होंने ये गलतियां कर करके ढूंढा है। सो वो जो नेट लॉस आया है उसको तो अभी पेंडिंग रखो, जब हम रिवाइज्ड ढूंढेंगे तब जो आंसर निकले उसका फिर अपने पोस्टिंग देखेंगे। डू यू गेट दैट? अब नीचे जरा देखेंगे तो पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर एज फॉलोज। अब वहां पर देखो लिस्ट ऑफ असेट दे ही दिया है, मतलब असेट में स्टॉक जाएगा, डेटर जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मतलब मुझे बाइफरकेट नहीं करना है कि वो कहां जाएगा, लिख के ही दे दिया है कि सारे क्या है। कहने से हाउस अम्मा लकी दी तो सर तो की भी मजा आवे। लकी खड़ो अपना स्टॉक है 50,000। देन डेटर्स हैं अपने 1 लाख। उसे बेटा इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर मापन एडजस्टमेंट है 20,000 इन द इनर कॉलम। देन बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है 50,000 इन द इनर कॉलम। कैश ऑन हैंड नो एडजस्टमेंट। कैश ऑन हैंड 6,000 અને बैंक बैलेंस 24,000। बैंक बैलेंस is our 24,000। फिर देखो लायबिलिटीज अपने को दे रखी है, तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई आस्क यू, कहां जाएगा? वेरी गुड सर, वेरी गुड, लायबिलिटीज में जाएगा। हमको आंसर आ रहे हैं। क्रेडिटर्स आर 40,000। Then bills payable. How much is the amount of bills payable? 14,000. Amount of bills payable are 14,000. Capital of Govind and Gopal कहाँ जाएगा? So लिखा जाए 1,416 by opening balance 1,30,000. It's 1,13,000। 1,30,000। बेटा ब्लैक मार्कर में इंक नहीं है, इसलिए मैं उसमें से अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी आई एम डूइंग इट इन रेड। ओके ओके, स्टार्ट करिए। चलो पहला एडजस्टमेंट जरा देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ बैड डेट्स कितना? 2,800। देन प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व और तीसरा है मेंटेन बैड डेट रिजर्व। अब इधर समझो, कहना से तीनों ही एडजस्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला वाला कौन सा? पहला वाला बैड डेट्स, दूसरा बैड डेट रिजर्व, तीसरा, तीनों ही एडजस्टमेंट एक से कनेक्टेड है। अब तुम मुझे बताओ पहला वाला कौन सा करूं? बैड डेट्स, दूसरा बैड डेट रिजर्व, and then I have to go for, तो let's do it in that order। अभी बैड डेट के लिए पहले वो डेटर में से अपने को क्या करने का? वो बैड डेट डेटर में से, क्योंकि अब उतने पैसे हमको नहीं मिलेंगे। सो बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट, बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट, हाउ मच इज द अमाउंट? 2,800। मैं पहले बैड डेट इसमें से माइनस करूंगा, 97,200। फिर बीडीआर कितना है बेटा? बीडीआर 7,200।
सो यहां से बीडीआर की अमाउंट पहले से ही दे दी है 7200। सो अमाउंट बैठती है कितनी? अमाउंट बैठती है कितनी? 90,000। अमाउंट इज आवर 90,000। अब ये जो 90,000 मेरे डेटर्स बच गए हैं, उस पे देखो डिस्काउंट रिजर्व कितना बनाने के लिए बोल रहे हैं? नाउ व्हाट इज दिस डिस्काउंट रिजर्व वाला कंसेप्ट? जरा समझो। डिस्काउंट रिजर्व वाला कंसेप्ट क्या है कि डेटर में से ऑलरेडी ये 2800 तो नहीं मिलेंगे, वो मैंने माइनस कर दिए। 7200 अभी भी मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं कि उनका मिलना ना मिलना ऐसा उसके बराबर है, डाउटफुल लग रहे हैं, तो वो भी मैंने डेटर में से माइनस कर दिए। तो अभी कितने बचे हैं? अब ये 90,000 में से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ लोग जरूर डिस्काउंट मांगेंगे, और जैसे ही वो डिस्काउंट मांगेंगे हमको वो देना पड़ेगा डिस्काउंट, नहीं तो शुगर से पैसा ज नहीं यहाँ पे। अगर मारे 1000 रुपया लेवाना था से ने पेलो कैसे I'll give you 900, give me a discount of 100. If I deny, if I say no, नहीं आपू तो पेलो 1000 रुपया पर नहीं यहाँ पे ये नहीं करता, 100 रुपया नो डिस्काउंट ले ले, 900 आपने अपना पैसा ले लेवाना। तो ये लोग डिस्काउंट मांगने आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो डिस्काउंट जब मांगने आएंगे तो डेटर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? डिस्काउंट मांगने आएंगे, डेटर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सो यहां से लिख देंगे हम लेस discount reserve as per adjustment. How much is the amount? 2% is 1800, तो 77 कितना? 88,200 आएगा सर। ओके बेटा, ये बैड डेट्स और डिस्काउंट्स की दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? दूसरी इफेक्ट क्या से पीएनएल के डेबिट साइड वो जानी है? पीएनएल के डेबिट साइड वो जानी है। सो पीएनएल के डेबिट साइड कैसा टेबल बनेगा? 2 बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस, बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट, बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट અને BDR as per trial balance. So बेटा what is backdated as per trial balance? तो कुछ भी नहीं दिया। एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 20 અને backdated रिजर्व कितना है? 7,000 અને ट्रायल बैलेंस પણ કઈ જ નથી આપ્યું। So the outer column amount goes to how much? 10,000. Outer column amount goes to 10,000. And beta, if you remember, discount માટે પણ same table બનાવવાનું રહેશે ટાટ નું, but it will be T, A અને T. Earlier illustrations में ऐसे adjustment आ गए थे और तुमने कर भी लिए हैं। सोचो, इलस्ट्रेशन आ भी गए और ये तुमने पहले कर भी लिए थे और बोलो पता भी नहीं चल रहा है। इसे कहते हैं बेटा टैलेंट से भरपूर बैच। नाउ टीएटी में कैसा रहेगा? डिस्काउंट एज पर ट्रायल बैलेंस कहीं ना दिया आप्यू, प्लस डिस्काउंट रिजर्व एज पर एडजस्टमेंट इज हाउ मच? 1800 लेस डिस्काउंट रिजर्व एज पर ट्रायल बैलेंस इज अगेन nil. सो आउटर कॉलम कितना जाएगा? 1800। आउटर कॉलम कितना जाएगा? 1800। अरे हाँ के ना, हाँ के ना। પછી પેલું ડેપ્રિસિએશન વાળું એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ કે કરશો? सर साथ में सम उठाया है तो सब कुछ करो। फर्नीचर का कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 5% ऑन ए बिल्डिंग। सो डेप्रिसिएशन एट 5% इट्स 1,000, सो 19,000 इन द आउटर कॉलम।
અને બિલ્ડિંગમાં પણ ડેપ્રિસિએશન 5% 2500 47500 बेटा where will be its second effect? P&L na debit side. Where will be its second effect? P&L na debit side. So 2 depreciation on furniture and a building. Furniture is 1000, building it's 2500. Furniture it's 1000 and a building is 2500. Beta, are all adjustments done? स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो, 2 एडजस्टमेंट और बाकी है। देखो ऐसा ही होगा एग्जाम में भी, तुम्हारे साथ यही सीन होगा। स्टार्टिंग की लाइन में 2 एडजस्टमेंट दिए, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अने बेटा गोपाल खड़ा है कमीशन लेने। सो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, जरा वो देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 5%। सो गोविंद और गोपाल का अगर 5% हम निकाले तो 5000 अने 1500। 1 लाख का 5% इस 5000 અને इसका 5% इस 1500। सो बेटा એની ઇફેક્ટ શું આવશે? અરે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, પાર્ટનર્સ કેપિટલ ક્રેડિટ સાઇડ। So 31,317 by interest on capital 5,000 and 1,500 and बेटा सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? सेकेंड इफेक्ट P&L appropriation में डेबिट साइड 2 interest on capital गोविंद and गोपाल 5000 અને 1500। But now give the heading working note number 1. Working note number 1. Calculation of working note number 1. Calculation of Gopal's commission. Calculation of Gopal's commission. अरे yes or no? Now calculation of Gopal's commission में लिखा क्या है? देखो, we have to calculate commission on profit after deduction of such commission. It's on profit after deduction. So commission का फॉर्मूला लगेगा क्या? Profit into rate of commission upon 100 plus rate of commission. Profit into rate of commission upon 100 plus rate of commission. अब देखो फॉर्मूला में लगाने के लिए मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो सबसे पहले अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट फाइंड करवा માટે સૌથી પહેલા કોને ક્લોઝ કરું? लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। बेटा डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करके जरा बताओ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड 3,80,000 और उसमें से ये दोनों माइनस का तीनों माइनस कर दो। 1,12800। बेटा ये जो आया वो है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1,12800
is our gross profit. ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? P&L credit side. So by gross profit 112800. अब बेटा जरा साइड में P&L के डेबिट और क्रेडिट का जरा टोटल कर दो। P&L के क्रेडिट और डेबिट का जरा साइड में टोटल कर लो। बेटा क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 11,114,200 and credit side का total 52700. So can I say credit side is again greater? Yes. So 114,200 114,200 में दिया माइनस करी दो 61,500. That's my net profit. और ये मैं P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूंगा। नेट प्रॉफिट 61,500. दिस इज माय नेट प्रॉफिट 61,500. आप जरा समझेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल है 61,500 અને डेबिट साइड નું टोटल છે 6,500. सो क्रेडिट और डेबिट माइनस करके मेरा प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 55,000. अपना क्रेडिट और डेबिट माइनस करके 55,000. सो अब ये फॉर्मूला में रखो 55,000 इंटू 10 अपॉन 110. 55,000 into 10 upon 100 plus 10 is 110. आइए सुनो थी खबर पड़ती कैसे P&L appropriation. बेटे 5,000 कमीशन कहां जाएगा? बेटा कमीशन कहां चला जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा जाए टू कमीशन टू गोपाल. कमीशन टू गोपाल 5,000. एंड बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी? सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कमीशन और गोपाल के कॉलम में 5,000 बाय कमीशन. गोपाल के कॉलम में 5,000. अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं. चलो 61,500 उसमें से ये माइनस अगर मैं करूं तो टोटल प्रॉफिट कितना बच रहा है? 50,000 प्रॉफिट बचा. और ये जो प्रॉफिट बचा वो है डिविजिबल प्रॉफिट जो गोविंद और गोपाल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. And the ratio comes to 3:2. So 30,000 गोविंद का, 20,000 गोपाल. 30,000 गोविंद and 20,000 गोपाल. बेटा डिविजिबल प्रॉफिट सेकेंड इफेक्ट partners capital, yeah, by divisible profit
30,000 અને 20,000. 30,000 અને 20,000. And now let's close partners capital account. Chalo. Now let's close partners capital account. So गोविंद के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,35,000 और गोपाल का टोटल है कितना 56,500. So 1,35,000 और 56,500 में से 6,000 माइनस कर दो. 1,29,000. 5,1. Now this is my closing balance 1,29,000 and 51,700, and that will go to our balance sheet. Capital Govind and Gopal 1,29,000 and 51,700. 234,700. That is where my balance sheet will get tallied. 234,700. But are you sure? Are you sure? Start with illustration 7. अभी फटाफट शुरू करो. Illustration 7 पढ़ना शुरू करो.